Hello dear students, we are in the series of basic science and this is part 2. In physics our first topic is energy. Energy is the ability to do work. Energy is the ability to do work. किसी काम को करने की क्षमता, किसी भी काम को करने की क्षमता ही उसकी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है. एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. काइनेटिक एनर्जी, it is determined by the movement of the object. It is determined by the movement of the object. Kinetic energy is equal to half mv square, where m mass of object, v velocity of object. Potential energy, it is determined by the position of the object. It is also known as stored energy. Potential energy is equal to mgh, where m mass in kg, g acceleration due to gravity, h height in meter. Value of g on earth is 9.8 meter per second square. Value of g on earth is 9.8 meter per second square. अगर आपसे किसी ने पूछा अर्थ पे g की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन अर्थ, definitely reply him or her. The value of g on earth is 9.8 meter per second square. Unit of energy is joule. What is the energy? What is the unit of energy? Unit of energy is joule. Guys, especially मैं गार्जियन से बात करूँगा कि हमारे छोटे स्टूडेंट्स जो यूकेजी या फर्स्ट या सेकेंड क्लास के हैं, इन डिफिनीशन को बार बार आप सुनाइए जो वट एवर आई हैव प्रोनाउंस्ड. जैसे एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. काइनेटिक एनर्जी, इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, where m mass of object, v velocity of object. Potential energy, it is determined by the position of the object. It is also known as stored energy. P, potential energy को short form में क्या बोलेंगे? PE. and kinetic energy को short form में क्या कहते हैं? KE. PE is equal to mgh, m for mass in kg, g for acceleration due to gravity, h for height in meter. Acceleration due to gravity, g4, and the value of g on earth is 9.8 meter per second square. Unit of energy is joule. One calorie is equal to 4.2 जूल. एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.2 जूल. 1 calorie is equal to 4.2 joule. Light. What is light? Study of light is termed optics. Study of light is termed optics. Light is a transverse electromagnetic wave. If suppose someone asks you what is light, just reply light is a transverse electromagnetic wave. Speed of light in vacuum. Vacuum का मतलब ऐसा स्पेस जिसमें एयर ना हो. Speed of light in a vacuum is 2.99 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. 2.99 को आप 3 भी अप्रॉक्स में बोल सकते हैं.
3 into 10 power 8 meter per second. Speed of light in a vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second. Light takes sunlight an average of 8 minutes and 20 seconds to travel from the sun to the earth. सन से अर्थ तक, सूरज से अर्थ तक सूरज की रोशनी को पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं. It takes sunlight an average of 8 minutes and 20 seconds to travel from the sun to the earth. Guys, एक बार फिर से देख लीजिए. Study of light is termed optics. अगर किसी ने पूछा what is optics? Reply, study of light is termed optics. What is light? Light is a transverse electromagnetic wave. Speed of light in a vacuum is 2.99 into 10 power 8 meter per second. 2.99 को अप्रॉक्स में 3 भी आप बोल सकते हैं. 3 into 10 power 8 meter per second. It takes sunlight an average of 8 minutes and 20 seconds to travel from the sun to the earth. Sound. What is sound? Sound is a vibration. It travels as an audible wave. It travels as an audible wave. Frequency of sound is measured in hertz. Frequency of sound is measured in hertz. Humans' capacity to hear the frequency of sound is between 20 hertz to 20 kilohertz या 20 to 20,000 hertz. हमारे कान की सुनने की क्षमता जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड at 0 degree centigrade. Sound cannot travel in vacuum. एक बार फिर से देख लीजिए. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड और जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज 2.99 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत ज़्यादा है. इसलिए बारिश के मौसम में जब आप देखेंगे गौर से कि रोशनी, बिजली जब कड़कती है तो रोशनी पहले दिखाई देती है, आवाज़ बाद में सुनाई देती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज़्यादा है. किसके कंपैरिजन में? स्पीड ऑफ साउंड के. Speed of light in a vacuum is 2.99 into 10 power 8 meter per second. जबकि speed of sound in air is 332 meter per second. Sound cannot travel in vacuum. Vacuum का मतलब ऐसा स्पेस जिसमें एयर ना हो. How to measure weight? 1 ton is equal to 10 quintal. In 1 ton, there is 10 quintal. In 1 quintal, there is 100 kilogram. 1 quintal is equal to 100 kilogram. 1 kilogram is equal to 1000 gram. एक बार फिर से देख लीजिए. 1 ton is equal to 10 quintal. 1 quintal is equal to 100 kilogram. 1 kilogram is equal to 1000 gram. लेंथ एंड डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है? 1 इंच स्केल पे आप देख सकते हैं. आपको 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर. 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर.
1 foot is equal to 12 inches. 1 kilometer is equal to 1000 meters. 1 meter is equal to 100 centimeters. 1 meter is equal to 100 centimeters. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. And 1 light year is equal to 9.5 into 10 power 15 meters. लाइट ईयर भी किसका यूनिट है? डिस्टेंस का. तो आई होप यू गाइज विल लर्न. अभी हम लोग केमिस्ट्री में वर्क करते हैं. केमिस्ट्री में आज शुरुआत करते हैं एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट? A substance that cannot be broken down into simpler substances by chemical means is called element. A substance that cannot be broken down into simpler substances by chemical means is called element. ऐसा substance जिसे और ज़्यादा केमिकली ना तोड़ा जा सके, उसके अस्तित्व को, उसके वजूद को ख़त्म ना किया जा सके, उसे क्या बोलेंगे? एलिमेंट. अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स इज कॉल्ड एलिमेंट. अब तक इस दुनिया में 118 केमिकल एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड टिल नाउ. 118 केमिकल एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड टिल नाउ. यहाँ हमने एक टेबल बनाया है 20 एलिमेंट्स के नाम, सिंबल और एटॉमिक नंबर. हाइड्रोजन H, एटॉमिक नंबर 1. हीलियम He, एटॉमिक नंबर 2. लिथियम Li, एटॉमिक नंबर 3. बेरिलियम Be, एटॉमिक नंबर 4. बोरॉन B, atomic number 5. Carbon C, atomic number 6. Nitrogen N, atomic number 7. Oxygen O, atomic number 8. Fluorine F, symbol क्या है? F, atomic number 9. Neon 10, atomic number 10, symbol Ne. Sodium Na, atomic number 11. Magnesium Mg, atomic number 12. Aluminium Al, atomic number 13. Silicon Si, atomic number 14. Phosphorus P, atomic number 15. Sulfur S, atomic number 16. Chlorine Cl, atomic number 17. Argon Ar, atomic number 18. Potassium K, atomic number 19. Calcium Ca, atomic number 20. एटॉमिक नंबर क्या है? व्हाट इज एटॉमिक नंबर? आपको कोई भी एलिमेंट नज़र आएगा तो जैसे कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए X, नीचे जो पॉइंट लिखा है, जो नीचे का नंबर होता है उसे Z कहते हैं, और एलिमेंट के ऊपर वाला नंबर A के नाम से जाना जाता है. X का मतलब नेम ऑफ एलिमेंट, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, A मीन्स एटॉमिक मास. एटॉमिक मास. आइए देखते हैं, हम लोगों ने इसके पहले के भी पार्ट में इस स्ट्रक्चर को बना चुके हैं. ये एटॉमिक स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियस बीच में है जिसके अंदर प्रोटॉन P+N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और न्यूक्लियस के बाहर शेल के एलिमेंट के फॉर्म में है, 1 2 3 4 के फॉर्म में है, और इन्हीं शेल में इलेक्ट्रॉन E होता है. एटॉमिक नंबर ऑफ ए केमिकल एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम. किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है. व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर ऑफ ए केमिकल एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम.
एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, एटॉमिक नंबर को किस सिंबल से सिग्निफाई करते हैं? Z से। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, बट फॉर न्यूट्रल एटम। आयंस के लिए बिल्कुल ये सही नहीं है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर के तभी होगा जब एटम क्या हो? न्यूट्रल हो, बट फॉर न्यूट्रल एटम। मास नंबर A, total number of protons and neutrons in an atomic nucleus is called mass number. Total number of protons and neutrons in an atomic nucleus is called mass number. एटॉमिक किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड कर दिया जाए तो वो उस एटम के मास नंबर के इक्वल कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर इज इक्वल टू P प्लस N। सम एग्जाम्पल आई हैव गिवन हियर, कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कार्बन C के नीचे आप देख सकते हैं 6 और C के ऊपर 12। 6 का मतलब ये Z का मतलब एटॉमिक नंबर, और 12 का मतलब A एटॉमिक मास नंबर। Z की वैल्यू क्या है? 6। मास नंबर की वैल्यू क्या है? 12। अगर आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों का नंबर निकालना हो तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू P है, और अगर एटम न्यूट्रल है, जैसा कि यहाँ दिख रहा है कार्बन न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी प्लस या माइनस नहीं है तो न्यूट्रल है, तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 6। क्योंकि Z की वैल्यू कितनी है? 6, तो प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू Z होता है, तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 6। ऐसे ही Z इज इक्वल टू E कब? जब एटम न्यूट्रल हो, इस वक्त न्यूट्रल है, इज इक्वल टू 6। तो A इज इक्वल टू P प्लस N। A की वैल्यू 12 है, P की वैल्यू 6 है, N की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 आ जाएगा। ऐसे ही C613 में भी Z इज इक्वल टू 6 जो कि P की वैल्यू है और जो कि E की वैल्यू है, और A इज इक्वल टू 13 है, तो A इज इक्वल टू P प्लस N, 13 इज इक्वल टू 6 प्लस N, N इज इक्वल टू 7। नाउ बायोलॉजी। व्हाट इज karyology? Study of nucleus of cell is karyology. Study of nucleus of cell is karyology. Karyology. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल की न्यूक्लियस को ढूंढने वाला कौन बंदा है? कौन से साइंटिस्ट हैं? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल इन 1831। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कारियोलॉजी? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ सेल इज कारियोलॉजी। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ सेल। गाइस, न्यूक्लियस ऑफ एटम की जब बात की जाएगी तो वो रदरफोर्ड हैं, लेकिन न्यूक्लियस ऑफ सेल की बात कही जाएगी तो रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यूज इज हिस्टोलॉजी। कई सेल आपस में मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू की स्टडी क्या कहला? व्हाट इज हिस्टोलॉजी? स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी किसके दायरे में आता है? किस ब्रांच में? हिस्टोलॉजी में। कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट, इट्स डिसऑर्डर, डिजीज एंड पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट, its disorder, disease and parts of circulatory system is cardiology। और जो बंदा इनको स्टडी करे, जो डॉक्टर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल, कार्डियोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, DER, dermatology, 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 dermatology. Study of skin, nails, hair and their diseases is dermatology. Doctor of skin, nail, hair and scalp, dermatologist.
थोड़ी सी कुछ खास इंफॉर्मेशन लेते हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी स्किन, सबसे बड़ा अंग ऑर्गन हमारी ह्यूमन बॉडी का है स्किन। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी स्किन। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, अंदर बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ऑर्गन क्या है? लीवर। लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फीमर, थाई बोन, फीमर। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी स्टेप्स इन द मिडल ईयर, कान में मिडल ईयर स्टेप्स। हार्डेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी इनेमल, टूथ इनेमल। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी 206। लेकिन जब हम पैदा होते हैं उस वक्त हमारी बॉडी में कितने बोन होते हैं? 270। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, जिसका पूरा नाम है ORH नेगेटिव, ORHD नेगेटिव, ORHD नेगेटिव। मतलब ये ऐसा ब्लड ग्रुप है O नेगेटिव। O नेगेटिव का मतलब ऐसा ब्लड, O नेगेटिव का मतलब जिसमें RH एंटीजन ना हो। अगर RH एंटीजन है, RH एंटीजन एक प्रोटीन है, RH एंटीजन अगर है तो पॉजिटिव होगा, अगर RH एंटीजन नहीं है ब्लड ग्रुप में तो नेगेटिव होगा। तो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबको दे सके, A को भी, B को भी, AB को भी, O को भी, सबको दे सके, उसे हम O नेगेटिव है वो, जिसका पूरा नाम है ORHD नेगेटिव। मतलब O नेगेटिव में RHD नहीं पाया जाता। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबसे ब्लड ले सके, AB RHD पॉजिटिव या AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव का मतलब इस ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन पाया जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर डिस्टिंग्विश्ड ब्लड ग्रुप, कार्ल लैंडस्टीनर ने ही ब्लड ग्रुप को ढूंढा था और बताया था 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, AB 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 ABO, AB ABO। और ये बात कब बताई थी? इन 1900। एक बार फिर, कार्ल लैंडस्टीनर डिस्टिंग्विश्ड ब्लड ग्रुप्स इन 1900। और क्या बताया था? कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? AB ABO। और अगर RH एंटीजन के हिसाब से देखा जाएगा तो 8 हो जाएंगे, A प्लस A माइनस, B प्लस B माइनस, AB प्लस AB माइनस, O प्लस O माइनस। अगर RH एंटीजन है तो प्लस, अगर RH एंटीजन नहीं है तो माइनस। एक बार फिर से देख लीजिए। लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी स्किन, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी लीवर, लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी फीमर, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी स्टेपिस इन द मिडल ईयर। फीमर कहाँ है? थाई बोन। और स्टेपिस कहाँ है? इन द मिडल ईयर, कान में 3 हड्डियों में एक हड्डी है स्टेपिस, जो मिडल ईयर है। इन द मिडल ईयर, इन द मिडल ईयर। हार्डेस्ट मटेरियल इन ह्यूमन बॉडी, सबसे टफ हार्डेस्ट मटेरियल है दांत का इनेमल, टूथ इनेमल। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी 206। ह्यूमन बॉडी is composed of around 270 bones at birth। जब हम पैदा होते हैं उस वक्त हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? 270। और जब बड़े हो जाते हैं तो उस वक्त ये हड्डियां कितनी हो जाती हैं? 206। यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ORHD नेगेटिव,
ओ नेगेटिव का मतलब ऐसा ओ ब्लड ग्रुप जिसमें RH एंटीजन नहीं है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ABRHD पॉजिटिव, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AB पॉजिटिव बोलते हैं। ब्लड ग्रुप को डिस्टिंग्विश करने का काम कार्ल लैंडिस्नर ने किया था, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स। अगर आपसे किसी ने पूछा हु इज द फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स, कार्ल लैंडिस्नर। उन्होंने बताया ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, ABO। कब बताया था, इन 1900। कार्ल लैंडिस्नर डिस्टिंग्विश ब्लड ग्रुप्स ABO इन 1900। देख सकते हैं फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स कार्ल लैंडिस्नर। हेमाटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिजीज इज हेमाटोलॉजी। डॉक्टर ऑफ ब्लड हेमाटोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनी एंड इट्स डिजीज इज नेफ्रोलॉजी। डॉक्टर ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम and its disease is gastroenterology. Doctor of digestive system, gastroenterologist. Hepatology, study of liver, gallbladder, pancreas and their disorders is hepatology. Doctor of liver, gallbladder and pancreas, hepatologist. Neurology, study of nervous system and its disorders is neurology. Doctor of nervous system, neurologist. Doctor of nervous system, neurologist. Study of bones and its disease is osteology, and doctor of bones, osteologist. Okay guys, take care. Thank you so much.